وہ مر گئی ہے۔ کلام کے مطابق لکھا ہے کہ اس نے پھر بھی گلہ شکوہ نہیں کیا، اس نے کوئی ایسی بیجا بات نہیں کی جس کی وجہ سے ابلیس جو ہے حاوی ہوتا۔ ابلیس ہارا کیوں؟ اس لیے کہ ایوب جو ہے وہ راست باز ہے۔ ابلیس بار بار جال پھینک رہا ہے کہ اسے کیا کرے، راست بازی سے ہٹائے، ایمانداری سے ہٹائے، فرمانبرداری سے ہٹائے، لیکن ایوب جو ہے وہ فرمانبرداری میں ہی ہے، وہ راست بازی میں ہی ہے۔ وہ تجھے کیا کرے گا؟ سیال کے پھندے سے چھڑائے گا، محفوظ رکھے گا۔ اب دیکھیں اس کی جان کا نقصان نہیں ہو رہا، لیکن اب جب ایوب کے اگلے باب کو ہم پڑھتے ہیں، تیسرے باب کو پڑھتے ہیں، تو وہاں پر خدا کے کلام میں فرمایا گیا کہ شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے ایک اور چال چلی کہ پہلے 2 بار میں تو وہ ہارا ہے، وہ ہار گیا۔ اب اس نے خدا سے مطالبہ کیا ہے کہ تو کیا کہہ رہا تھا؟ اب وہ بات نہیں، اب ایک اور مجھے کام کرنے دے کہ میں کیا کروں، اس کو دکھ دوں۔ اب جسم اور ہڈی کی بات ہو رہی ہے، پہلے مال و دولت کی بات کی گئی، لیکن تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ابلیس نے کیا کیا؟ خدا سے مطالبہ کیا کہ میں کیا کروں گا، اس کی ہڈی اور ماس کو ضرر پہنچاؤں گا۔ تو وہ کیا کرے گا؟ تیرا انکار کرے گا۔ کلام کے مطابق لکھا ہے کہ ایوب پر دردناک پھوڑے، ایوب کے جسم کا پر دردناک پھوڑے آئے، اور وہ ٹھیکرا لے کر کیا کرتا ہے؟ خارش کرتا ہے، کھجلی کرتا ہے۔ دیکھیں خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے، لیکن وہ فرمانبرداری سے نہیں ہٹا، وہ راست بازی سے نہیں ہٹا، ایمان کا انکار نہیں کیا، بلکہ ایمان میں مضبوط رہا۔ جب ہم پر ابلیس حملے کرتا ہے، ہم پر تھوڑی سی بھی بیماری آ جائے، دنیوی طور پر ہمارے آس پاس بھی یہی ہو رہا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ آس پاس کے لوگ بلا کیا کرتے ہیں؟ بھئی اگر اس سے آرام نہیں آ رہا تو فلاں کے پاس لے جائیں، فلاں کے پاس لے جائیں، فلاں کے پاس لے جائیں۔ وہاں جا کر کیا ہوگا؟ اس سے آرام مل جائے گا۔ ہاں اگر وہ جسمانی طور پر صحت مند ہو جاتا ہے، لیکن پورے کا پورا خاندان بیمار ہو جاتا ہے، پورے کا پورا خاندان شکاری کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس شکار میں، اس پھندے میں آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ غلط اور ٹیڑھی راہ کو اپنایا ہے۔ دیکھیں کلام میں فرمایا گیا ہے کہ ایوب کی بیوی ایوب کے پاس آئی اور کہتی ہے کہ تو کب تک ایمان میں مضبوط رہے گا، کب تک ایمان سے نہیں ہٹے گا، کیوں راست بازی میں ہے، کیوں خدا کے نام کو پکارتا ہے، کیوں اس کی عبادت کرتا ہے، کیوں اس کے حضور جھکتا ہے، کیوں اس کا نام لیتا ہے کہ وہی سب کچھ کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ وہ کہتی ہے اٹھ، یا تو پھوڑوں میں ہے، تو بیماری میں مبتلا ہے، درد میں ہے، اور یہاں پر جو الفاظ ہے نا وہ ہے مر جا۔ اس کی بیوی کیا کہہ رہی ہے؟ اپنے آدمی کو، شوہر کو کہہ رہی کہ مر جا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ
जख्मी फोड़ों की हालत में है और बीवी में से शैतान होकर ये सब कुछ कह रहा है। लेकिन तीसरा जो बार इब्लीस ने किया, तब भी अय्यूब जो है वो रास्तबाज निकला, वो फर्माबरदार निकला, ईमान में मजबूत रहा और सरफराजी हासिल की और शिकारी के फंदे से महफूज रहा, क्योंकि खुदा ने क्या किया है, उसे छड़ाया है, उसे महफूज रखा है। हाँ, अगर उस पर दुख आए हैं, मुसीबत आई है, बीमारी आई है, तो भी वो ईमान में मजबूत रहा, तो खुदा ने फिर उसे क्या किया है, सरफराज किया है। देखे कैसी खुदा की मेहरबानी है, खुदा कैसे भले काम करता है। क्यों? इसलिए कि वो क्या करता है, शैतान के फंदे से, शिकारी के फंदे से वो क्या करता है, बचाता है और खुद उनके साथ मुसीबत में उनके साथ शामिल हो जाता है। सदरक मिशक अबदनजो की तरफ देखें, जब उन्हें आग की भट्टी में फेंका गया तो खुदा ने देर नहीं की, बल्कि उनकी रास्तबाजी के वजह से, ईमान की वजह से खुद उनके साथ मौजूद हुआ है और आग ने उनका नुकसान नहीं किया, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि वो तुम्हें क्या करेगा, शैतान के फंदे से छड़ाएगा। और जब ही सदरक मिशक और अबदनजो के साथ खुदा है, तो कलाम में फरमाया गया कि उन्हें सरफराजी मिल गई। और देखें कहां से कहां वो शाही महल में चले गए हैं, सरबराही मिल गई है। खुदा का कलाम जो है वो हमें शैतान के फंदे से छड़ाता है। खुदा का कलाम हमें ईमान की मजबूती अता करता है। चारों तरफ से इब्लीस हमारे चगिर्द फंदे फेंके, तो भी अगर हम ईमान में मजबूत है तो अय्यूब की तरह हमारा वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रास्तबाजी में हमने कायम रहना है, ईमान में कायम रहना है, क्योंकि खुदा के कलाम में फरमाया गया है। आई खुदा के कलाम को जब हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ेंगे दूसरा थसालिकियों के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका 3 बाब और उसकी 3 आयत में हमारी रहनुमाई और भलाई के लिए क्या लिखा है। कलाम पाक में हम सब की रहनुमाई और भलाई के लिए दूसरा थसालिकियों पौलुस रसूल का खत, वहां पर यूं लिखा है, मगर खुदावंद सच्चा है। क्यों सच्चा है? क्योंकि उसने फरमाया है कि जो कोई मेरे कलाम पर अमल करेगा मैं उसे क्या करूंगा, महफूज रखूंगा, उसकी हिफाजत करूंगा, उससे मैं जरूर भी पहुंचने नहीं दूंगा। कलाम में फरमाया गया है, मगर खुदा सच्चा है, वो तुमको महफूज रखेगा, वो तुमको मजबूत करेगा और उस शरीर से महफूज करेगा। किस शरीर से? जो फंदे लगाता है। आज के दौर में इब्लीस कैसे फंदे लगाता है? लालच का फंदा वो रखता है और इंसान जो है वो लालच में गिरा जाता है, गिरफ्तार हो जाता है। और लालच जो है ना, ये सबसे बड़ा गुनाह है। लालच गुनाह दी जड़, गुनाह दी मजदूरी मौत। और लालच जो है ये बुत परस्ती के बराबर है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, कलाम में फरमाया गया है कि लालच जो है ये बुत परस्ती के बराबर है। इसलिए लालच से हमने क्या रहना है?
बास रहना है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि शरीर से महफूज रखेगा। और कब रखेगा? जब हम ईमान में मजबूत होंगे, जब हम कलाम पर अमल करेंगे, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखेंगे, खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा तस्लीम करेंगे, तो फिर क्या होगा? वो हमारे चगिर्द चौलासम तलवार का पहरा लगा देगा, फरिश्तों का पहरा लगा देगा, और इब्लीस हमें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, क्योंकि वो हमें क्या करता है? संभालता है, हमारी फिक्र करता है, हमारी हिफाजत करता है। जब हम खुदा के पाक और खूबसूरत कलाम को पढ़ते हैं तो हमें कलाम में ऐसे लोग भी मिलते हैं जो इब्लीस की तरह क्या करते हैं? फंदे लगाते हैं, हटाते हैं खुदा से। कलाम में जब हम हिजकिय्याह 34 बाब और उसकी 28 आयत में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, और वो आगे को कौमों का शिकार ना होंगे। कौन? जो खुदा के कलाम पर ईमान रखते हैं वो कौमों का शिकार भी नहीं होंगे, और जमीन के दरिंदे उनको निगल ना सकेंगे। जमीन के दरिंदे कौन हैं? जो वबा है, बीमारी है, दुख है, तकलीफ है, शेर है, ये उनको निगल नहीं सकेंगे। क्यों? बल्कि वो अमन से बसेंगे, क्योंकि खुदा उनके साथ है, खुदा उनकी रहनुमाई करता है, खुदा उनकी हिफाजत करता है, खुदा उनके साथ है। क्यों? इसलिए कि वो ईमान में मजबूत है, और वो उनको क्या करेगा? मोहलिक वबा से छुड़ाएगा, वो उनकी हिफाजत करेगा, उन्हें सियाह के फंदे से छुड़ाएगा। और कलाम में लिखा है कि उनको कोई डराएगा भी नहीं, डराएगा भी नहीं। जो ईमानदार लोग हैं वो इब्लीस से डरेंगे भी नहीं। अय्यूब साबर नहीं डरा, अय्यूब साबर नहीं डरा, वाकई नहीं डरा। अगर ढक जाता तो गमराह हो जाता, हट जाता, रास्तबाजी से हट जाता। और कलाम में फरमाया गया कि उन्हें कोई डराएगा भी नहीं। खुदा के कलाम में जब हम 5 आयत को ज़बूर 91 की 5 आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमारी रहनुमाई और भलाई के लिए क्या लिखा है? खुदा कहता है कि मैं उनकी कैसे आवाज़ को सुनूंगा, मैं उनकी किस तरह से आवाज़ को सुनूंगा, क्योंकि वो ईमान से दुआ करेंगे, ईमान से पुकारेंगे। कलाम में लिखा है कि वो मुझसे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। 5 आयत में लिखा है, 91 ज़बूर की 5 आयत में, कि वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा। कौन साथ है? खुदावंद खुदा अपने बेटे के वसीला से हमारे साथ है। सदरक मिस्र के साथ था, लेकिन वही खुदा जिसने सदरक मिस्र अब्दनजू को बचाया वो हमारे भी साथ है, रहना चाहता है। लेकिन वो ये चाहता है कि हम ईमान में मजबूत हो। कलाम में फरमाया गया है कि मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। सदरक मिस्र अब्दनजू को छुड़ाया और इज्जत भी बख्शी। और आखिर में जब हम खुदा के पाक और खूबसूरत कलाम को पढ़ते हैं तो ज़बूर की किताब और उसका 31 ज़बूर और उसकी 4 आयत जरा पढ़ेंगे कि कलाम पाक में हमारी रहनुमाई के लिए क्या लिखा है। ज़बूर नंबर 31 और उसकी 4 आयत बड़ी अच्छी और खूबसूरत हदायत की बात यहाँ पर लिखी है। ज़बूर नंबर 31 और उसकी 4 आयत। लोगों ने क्या किया? लोगों के लिए, इंसान ने इंसान के लिए जाल बनाया है, और जिसका ऐलान खुदा का बंदा ज़बूर नवीस दाऊद करता है। और वो ज़बूर 31 में 4 आयत में क्या कह रहा है? कलाम में फरमाया गया है कि मुझे उस जाल से निकाल ले जो उन्होंने छुप कर मेरे लिए बचाया है। खुदा का बंदा दाऊद कह रहा है कि मुझे उस जाल
से निकाले जो उन्होंने मेरे लिए बचाया। किसने बचाया था? शाऊल ने। शाऊल उसे मारना चाहता है, लेकिन वो खुदा के हजूर में गुजारिश करता है कि तू ही मुझे छड़ाने वाला है, तू ही मुझे बचाने वाला है, तू ही मुझे इज्जत देने वाला है, तू ही मुझे शोहरत देने वाला है, तू ही मुझे मजबूत करने वाला है, तू ही मुझे शरीर से महफूज रखने वाला है। खुदा का बंदा दाऊद कहता है, बड़ी अच्छी और खूबसूरत बात वो कहता है, क्योंकि तू ही मेरा मोहकम किला है। जब हम अपने आप को उसके हाथों में दे देते हैं ना, तो फिर वारे न्यारे हो जाते हैं। एक छोटी सी मिसाल हम सीखेंगे दुनियावी तौर पर। जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं? हम उन्हें हाथ से पकड़ कर चलाते हैं। छोटे छोटे जब बच्चे होते हैं ना, 4 साल का, 3 साल का, 5 साल का, तो हम उस छोटे बच्चे को उसका हाथ पकड़ कर चलाते हैं। उसकी एक बड़ी वजह है, क्योंकि वो गिर ना जाए। और अगर वो छोटा बच्चा जिसका हमने हाथ पकड़ा हुआ है और पकड़ते पकड़ते वो थक जाता है, वो गिरने लग जाता है, तो फिर अगर बाप है, उसका चचा है, उसका दादा है, या उसका बड़ा अजीज है जिसने उसे हाथ से पकड़ा हुआ है, वो उसे गिरने नहीं देता। लेकिन अगर किसी बड़े ने अपना हाथ बच्चे को पकड़वाया हो कि वो बच्चे मेरा हाथ तू फड़ ले और नाना चल जाओ, तो फिर ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि बच्चा जो है जब गिरेगा तो फिर गिर जाएगा। तो हमने क्या करना है? हमारे लिए यही सबक है, हमारे लिए यही है कि हम सब, मैं और आप सब, अपना हाथ खुदा के हाथ में दे। खुदा को ना पकड़े, खुदा का हाथ ना पकड़े कि खुदा हम तेरा हाथ पकड़ना चाहते हैं और तेरे साथ चलना चाहते हैं। नहीं, हरगिज नहीं। गिर जाएंगे, चोट लगेगी, रास्ते में रह जाएंगे। और जब हम खुदा के हाथ में अपना हाथ दे देंगे, तो फिर वो हमें गिरने नहीं देगा, वो हमें संभालेगा। क्योंकि लालच जो है वो एक बड़ा फंदा है। बच्चे को जब बाप लेकर जाता है ना दुकान पर, तो क्या होता है? बच्चा साथ में खड़ा है, दुकानदार से बाप क्या कर रहा है? सौदा ले रहा है, चीजें ले रहा है। और कोई और शख्स आ जाता है तो वो क्या करता है? बच्चे को चीज दिखाता है, चॉकलेट दिखाता है, और बच्चा जो है वो बाप को छोड़ देता है और उस शख्स की तरफ जाता है जिसके हाथ में चॉकलेट है। क्यों? क्योंकि बच्चा जो है नादान है और लालच में आ जाता है कि उसके लिए एक अच्छी चीज है, चॉकलेट है, और वो उस शख्स की तरफ लपकता है। और बाप यहाँ पर क्या कर रहा है? दुकान से सौदा सल्फ ले रहा है, और जब थोड़ी देर में देखता है तो बच्चा उसके साथ नहीं होता। क्यों? इसलिए कि बच्चा जो है वो चॉकलेट के लालच में दूसरे के साथ जा चुका होता है। आज भी हम लालच की चॉकलेट में गिरफ्तार हैं। हमें क्या करने की जरूरत है? हमें खुदा के हजूर में झुकना है और उसके हजूर में आकर झुककर इल्तिजा करनी है कि खुदा तू अपने बेटे हमारे मनुष्य खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमारा हाथ अपने हाथ में ले ले, ताकि हम चॉकलेट जो लालच है हम उसकी तरफ ना भागे।
हम उसकी तरफ ना लपके, बच्चे की तरह हम उसकी तरफ ना जाएं, क्योंकि इब्लीस हमें लालच की चॉकलेट खिलाना चाहता है। क्यों? इसलिए कि हम खुदा से दूर हो जाएं। तो खुदा के हजूर में हमने क्या करना है? खुदा के हजूर में झुकना है, क्योंकि खुदा हमें क्या करता है? सियाद के फंदे से छुड़ाता है। सो हमने क्या करना है? अपने आप को खुदा के हजूर में पेश करना है, ईमान में मजबूत रहना है, ईमान में मजबूत रहकर जिंदगी गुजारनी है, ताकि हम खुदा के कलाम पर अमल करते हुए इब्लीस का मुकाबला करें और सरफराजी हासिल करें। वो कहता है कि मैं क्या करूंगा? इज्जत बख्शूंगा, सरफराजी बख्शूंगा और बरकत होगा। सो आए हमने क्या करना है? खुदा के कलाम को कबूल करना है, ईमान में मजबूत रहना, ताकि सियाद के फंदे में कहीं ऐसा ना हो कि गिरफ्तार हो जाए। क्योंकि इब्लीस जो हमारा सबसे बड़ा शिकारी, हमारे शिकार करने वाला है, दुश्मन है, उसका मुकाबला करने के लिए ईमान में मजबूत रहें। खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा तस्लीम करें। खुदावंद आप सबको आज के कलाम के वसीला से महफूज रखे और सियाद के फंदे से छुड़ाए, इब्लीस के फंदे से महफूज रखे, इज्जत बख्शे, सरफराजी बख्शे और मजबूत रखे। आमीन।